دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج جس ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے ہیں یا جس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور آپ کے لیے بہت ہی نالج فل ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا پہ پوری آدھی دنیا پہ لگ بھگ یا پوری دنیا پہ ہی راج کرنے والے منگول کا جو سردار تھا اور جو منگول کی نیو رکھا تھا جس نے چنگیز خان، اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چنگیز خان ایک بہت ہی کرور اور بے حد ہی خطرناک اور ظالم بادشاہ میں اس کی شمار ہوتی تھی۔ پوری دنیا اس کے ظلم سے کانپتی تھی اور وہ لوگ جدھر سے گزرتے تھے نا، پوری بستی کو ہی ویران کر دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ کبھی انسان تھے ہی نہیں۔ اس طرح سے وہ جدھر سے گزرتے تھے پوری بستی کو وارہ نیارہ کرتے ہوئے ادھر سے گزر جاتے تھے۔ بہت ہی ظالم لوگ اور بہت ہی بے رحم جو الفاظ جتنا ان کے خلاف استعمال کیا جائے کم تھا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اس ویڈیو کو بیان کیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہ چنگیز خان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ آئیے چلیے جانتے ہیں کہ اس کی آخر موت کیسے ہوئی تھی۔ چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور جو چینل پر نئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ چلیے پہلے ویڈیو کو شروع کر کے دیکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں بعد میں بات۔ میرے عزیزوں، رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں۔ لیکن مومن بے قرار ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے، مشکلوں سے گزارے جاؤ گے۔ ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو وہ جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکیں بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔
चंगेज जोर से कहकहा मारा। दूसरी सब पूरी जब कत्ल हो गई, कहा कि ओ बूढ़े, बस आखिरी थी, इसके बाद कहां जाएगा, अब कौन बचाएगा? उस बूढ़े मियां ने जोर से कहा, अब भी अल्लाह है, इसके बाद भी अल्लाह है, ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसने गुस्से के मारे जल्लाद से कहा कि तीसरी सफ को फौरन आन के आन में कत्ल करो। लेकिन तीसरी सफ का कत्ल अभी शुरू ही हुआ था कि चंगेज का घोड़ा अचानक बिदक गया, उसका खिलौना हाथ से गिर गया। जिस चीज से वो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका ना दिया, और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ, कई पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया, घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया। और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियां ने कहा, मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करें। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे? और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी। उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने यह तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी, कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है, इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं। लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है, न खाना है, न तीरों में तरकश है, न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हा हू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है, न रास्ता है, न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था? सहाबा कहते हैं, हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था। सहाबा में कुछ वो है हजरत उकाशा, वो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खजूर के तने की लकड़ी ले आया था जंग में उतरने के लिए। जहां तलवारें सनसना रही हो
वहां एक सहाबी खजूर का सूखा हुआ तना लेकर के आए। ये तवक्कुल बताता है कि अल्लाह हमारे साथ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सारे मैदान में उतर जाने के बाद फिर मेरे आका दुआ करते हैं, ऐ मौला, हमने जो अपनी ताकत में था वो सब मैदान में उतार दिया, अब अगर तेरी मदद ना आएगी तो फिर इस जमीन पर सजदा कौन करेगा, इस जमीन पर इबादत कौन करेगा। ये नहीं है कि यहीं बैठकर कोशिश कुछ नहीं करनी है, अमल कुछ नहीं करना है, दुआओं के और इसी तरह के मजमे में बैठ करके हम ये कह दें, ऐ अल्लाह तू फलां को गारत कर दे, फलां को गारत कर दे। अजीज़ान गिरामी, मोमिन के लिए कहा गया है कि वो अमली मैदान में उतरे, अमली मैदान में उतरे। मैं आपको बताता हूं, एक शरीफ आदमी थे, मौलवी साहब, सूफी साहब, खेती बाड़ी करते थे और गांव के कई लोगों ने मिला करके सूफी साहब को एक खेत दे दिया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते रहते, आपका माश भी तो चलना चाहिए, घर बार भी चले। तो सूफी साहब को खेत मिला, मौलवी साहब ने खेती बाड़ी तो कर ली, उसमें मकई या गेहूं जो भी आए, फसल जब आई तो जाहिर सी बात है बैठते थे, एक गधा आता था और चर के चला जाता। सूफी साहब क्या तस्बीह पढ़ते, ऐ अल्लाह ये गधे को बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह ये गधे को तबाह कर दे, ये गधे को खत्म कर दे, बैठे बैठे गधे को खत्म कर दे, बैठे बैठे गधे को। वो गधा अपना तो चरता था, चला जाता था, इनकी तस्बीह चलती रहती थी। कुछ नौजवानों ने देखा, अरे मियाँ मौलवी साहब रोज तस्बीह लेकर के बद्दुआ कर रहे हैं, गधा आता है अपना खाता है चला जाता है। कई दिन तक देखा, आधा खेत तो गधा खा गया था। तो फिर एक दिन इन नौजवानों ने मोटे मोटे डंडे लाए और ला करके जिस वक्त गधा आया उसकी धुलाई शुरू कर दी, और गधा उसके बाद जो गायब हुआ फिर खेत में आया ही नहीं। उन नौजवानों ने कहा कि मौलवी साहब, अगर तस्बीह से ही सब कुछ हो जाना था, तस्बीह से ही सब कुछ हो जाना था, तो न खेती बाड़ी की जरूरत होती, न पानी बरसाने की जरूरत होती, घर में बैठते खाना पहुंच जाता। असबाब भी तो कोई चीज है, अमल के मैदान में उतरो, सिर्फ और सिर्फ तस्बीह नहीं, कभी डंडा भी। मेरे अजीजों, ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि अमली मैदान में ना आकर के सिर्फ और सिर्फ यहां बैठकर मशवरे करने से नहीं होता। अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को तब्दील करो। कुरान तुम्हें बुला रहा है, तुम पहले इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम्हारा चेहरा इस्लामी लगे, तुम्हारा रहन सहन इस्लामी लगे। जालिमों को अपने जुल्म के अंजाम तक पहुंचाना ये मेरे मौला की शान है। माशाअल्लाह सुभान। जिस तरह से मुफ्ती सलमान जहरी साहब ने इस बयान को बयान किया कि चंगेज़ खान की किस तरह से मौत हुई थी, घोड़े से मतलब गिर जाने के बाद, लटक जाने के बाद, और घोड़ा उनको लेके काफ़ी स्पीड में दौड़ा और उनका सर जो है, उसका सर जो है कई पत्थरों में टकराने के बाद उसका सर का भेजा जो है दिमाग को बाहर आ गया, उससे उसकी मौत हो गई थी। तो हजरत ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इसको बयान किया और बताया, और लोगों के हालात इस टाइम जिस तरह के हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, उस पर भी हजरत ने जिस तरह से बयान किया कि आप अमल करें और कुछ काम करें तब मदद आने की उम्मीद लगाएं। आप बैठे बैठे घर पे या दुआएं करने से मदद अल्लाह की नहीं आती। आप पहले कुछ काम करें, कुछ अमल करें, कुछ ऐसा अपना अमल दिखाएं कि जिससे उसके बाद आपको फल का इंतज़ार करें। और आपने पेड़ लगाया नहीं और फल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही कहने का मतलब है हजरत का कि आप पहले पेड़ लगाइए फिर फल का इंतज़ार करिए। तो आपको बयान कैसा लगा हजरत का? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जैसे भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो चंगेज़ खान की मौत के बारे में बताया गया, इस वाक़या को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, या आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं, इस बयान पर हजरत के आप क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा हमें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, इसमें जिक्र हुआ था कि बगदाद में खून की नदियाँ बहा दी गई थी, तो वो चंगेज़ खान के बेटे या पोते ने, हलाकू खान ने
एक रात में करीब 13 लाख मुसलमानों को एक रात में वहाँ पे शहीद कर दिया था। उसकी वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे निकाल के, क्योंकि वो हम काफ़ी दिन पहले सुने थे और बहुत ही जो है इमोशनल बयान है, और वो बहुत ही ऐसा वाक़यात है कि जिसमें उस आबादी को रिकवर होने में करीब 200 से 300 या 400 साल लग गए थे फिर से। तो उस वीडियो को हम फिर से आपको एक बार सुनाएंगे, डालेंगे उस वीडियो का जो है पूरा बयान आपको हम सुनाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।